বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় কৈলাসহর প্রেস ক্লাব পালন করল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহরের মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার, বাংলাদেশ থেকে আগত সাংবাদিক বিপুল চক্রবর্তী, সঞ্জয় দে, মুজিবুর রহমান রঞ্জু সহ বাংলাদেশের মৌলভী বাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলা প্রেস ক্লাব এবং সমসর নগরের এক ঝাঁক সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কৈলাসহর প্রেস ক্লাব মঙ্গলবার বিকাল 4টা থেকে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করে 4টি বিভাগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় প্রায় 1.5 শতাধিক প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে সন্ধ্যা 6টা থেকে প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় মূল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৈলাসহর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক চারুকৃষ্ণ কর। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে আলোচনা করেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক বিশ্বজিৎ দেব ও বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক সত্যজিৎ দত্ত। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান অতিথি জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার বাংলা ভাষার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আমাদের রাষ্ট্রীয় গান, রাষ্ট্রীয় সঙ্গীতে বাংলা ভাষার ব্যবহার হয়েছে। ভারতবর্ষের অনেক সঙ্গীতজ্ঞ বাঙালি, অনেক নায়ক নায়িকাও বাঙালির মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন, তিনি নিজেও বাংলা ভাষা শেখার চেষ্টা করছেন। নিজের ভাষা মনের মধ্যে রেখে সাথে সাথে অন্য ভাষার সম্মান করার কথা বলেন। অবশেষে তিনি বাংলাদেশের অতিথিদের হাতে প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে দেওয়া স্মারক ও মানপত্রগুলো তুলে দেন। বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট সাংবাদিকরা দুদেশের সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন। একই সাথে শ্রীমঙ্গল উপজেলা প্রেস ক্লাব সদস্যরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও স্বাধীনতার উপর নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের শেষ বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের শ্রীমঙ্গল উপজেলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সাংবাদিকরা ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার এবং কৈলাসহরের মহকুমাশাসক প্রদীপ সরকারকে মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করেন এবং এই দুইজনের হাতে বাংলাদেশের মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে আসা সাংবাদিক সহ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের কৈলাসহর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। আলোচনা সভা শেষে বাংলাদেশ থেকে আসা বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী তারেক ইকবাল চৌধুরী বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। बांग्लादेश और हमारे बीच में जो ये भाषा का संबंध है, जो एक भाषा हम लोग बोलते हैं, खासकर इस पूरे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वो संबंध और इंक्रीज हो। भाषा का मनुष्य से बहुत इंपॉर्टेंट नाता है। ये एक भाषा ही है जो हमें एक दूसरे से बात को समझाती है। चाहे एक बच्चा अपनी माँ से बात करता हो, एक भाई एक दूसरे भाई से बात करता हो। एक भाषा है जो लोगों को एक दूसरे के पास लाती है, और यही भाषा कभी कभी अगर ठीक से इस्तेमाल ना हो तो एक दूसरे से दूर भी ले जाती है। इसी तरीके की एक घटना जो भाषा 1971 में आसपास हुई, जिसमें एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रीवियस अर्स्टवाइल पाकिस्तान से इसी भाषा को इम्पोज किया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भारत लोकतंत्र में इस तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी कि जिस राज्य में जो लोग जो भाषा बोलना चाहें या इवन बोली बोलना चाहे, उनको उसका पूरा अधिकार दिया गया। और खासकर मैं बांग्ला भाषा का बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि आप भारत के राष्ट्रगान को ले लीजिए या भारत की राष्ट्रीय जो संगीत है उसको ले लीजिए, सभी में आज भी बांग्ला भाषा का ही प्रोमिनेंट यूज किया गया है। चाहे हमारा जन गण मन हो, चाहे हमारा वंदे मातरम हो, उसमें आज भी जो बांग्ला भाषा में जो कृतियां थी उनका इस्तेमाल किया गया है। बंगाली भाषा अपने आप में एक बहुत ही मीठी भाषा है। हमारे
उत्तर भारत में बोला जाता है कि अगर दो बंगाली लड़ाई भी करते हैं तो लगता है कि एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जो मीठी बोली है वो मन को छू जाती है, और मैं भी इस भाषा को सीखने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं खासकर जो मेरे जूनियर कलीग्स हैं, जो बच्चे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितनी भाषाएं सीखो उतना ही आपका जो दिमाग है वो ब्रेन डेवलप होता है। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहो, विश्व में कहीं भी रहो, अपनी भाषा का प्यार रहना चाहिए, क्योंकि यही एक भाषा है जो जमीन से जोड़ती है। बाकी तो जमीन क्या है, एक मिट्टी का टुकड़ा है। एक भाषा है जो नेशनलिज्म को क्रिएट करती है, एक अपने अस्तित्व को क्रिएट करती है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाली जनरेशन भी जिस मातृभाषा में वो बोलती है उस भाषा को अपने दिल से लगाएगी, उसका सम्मिलन करती रहेगी। इसके साथ साथ हमें अन्य भाषाओं का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारे ही प्रांत में कोकबोरोक एक भाषा है जो बोली जाती है। तो हम सभी जितने भी यहाँ पे त्रिपुरावासी हैं, हम दोनों ही भाषाओं का बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं, और दोनों ही भाषाओं का इस्तेमाल हर चीज में किया जाता है। इससे ना केवल लोग आपस में जुड़ते हैं, परंतु सभ्यताएं भी आपस में जुड़ती हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का ये पारस्परिक आपसी संबंध अभी तक चल रहा है, खासकर हमारे जो भाई बंधु बांग्लादेश में हैं, ये ऐसा ही चलता रहेगा और अच्छा होगा। और अंत में मैं कैलाशहर प्रेस काउंसिल को अगेन से धन्यवाद दूंगा, और प्रेस क्लब को फिर से धन्यवाद दूंगा कि इतना सुंदर और इतना बढ़िया प्रोग्राम उन्होंने अरेंज कराया, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे कुछ मित्र बांग्लादेश से आए। मैं उम्मीद करूंगा ये लोग ऐसे ही आते रहेंगे और हमारे साथ जो ये संबंध है और प्यारा होता जाएगा। धन्यवाद।